Good morning, students. Today we'll be starting with the lecture 2 of theory of demand. In last lecture we people discussed about the various terms and terminology being used in chapter. We discussed about the term desire, demand, then individual demand, market demand, individual demand schedule, market demand schedule, individual demand curve and market demand curve. Today we'll proceed further. पहले तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से हाउ वी डिराइव इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल से हाउ वी डिराइव मार्केट डिमांड कर्व विल डिस्कस दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. Last lecture I clearly told you that when we'll be doing the definitions in this chapter, the definition need to revolve around 4 words. अगर individual बोलना है तो it is a demand of a single consumer in the market, able and willing to buy different possible prices during a given period of time. Individual, able and willing, different possible prices during a given period of time. अगर market बोलना है it is a demand of all the consumer able and willing to buy different possible prices during a given period of time. These 4 words are very important to learn any of the definition. Now do remember schedule means tabular presentation and graph means graphical representation. So individual demand schedule, it is a table showing demand of a single consumer in the market. सिर्फ table word add करना है. It is a table showing demand of a single consumer in the market that he is able and willing to buy at different possible prices during a given period of time. Now let's go with the individual demand schedule. We'll take price in rupees, quantity demanded in units. As there is only one consumer, we'll take the quantity demanded by consumer A. Say take price 1, 2, 3, 4 and 5. Quantity demanded, as price increases, it's a general tendency of a consumer, price बढ़ता है तो demand कम होती है. तो demand 5, 4, 3, 2, 1. So that means at price rupees 1, consumer is willing to buy 5 units of a commodity. At price 2, he is willing to buy 4 units. At 3, 3 units. At 4, 2 units. And at 5, 1 unit of a commodity. So now let's proceed. How individual demand schedule. This is called as schedule. This tabular presentation is called as schedule. So how will define individual demand schedule? It is a table. It is a table showing demand of a single consumer in the market that he is able and willing to buy at different possible prices during a given period of time. Now इस शेड्यूल को अगर हमने कर्व में कन्वर्ट करना है, मैंने जब आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व, आई एम यूजिंग द एब्रीविएशन IDC, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. इंडिविजुअल demand curve. So individual demand curve is a graphical presentation of individual demand schedule. That means individual demand schedule को जब हम graphically present कर देते हैं, it is called as individual demand curve. Graphical presentation of individual demand schedule is called as individual demand curve. Now let's see how this schedule can be converted into curve. We'll take 2 axes. This is y-axis and this is x-axis. On x-axis we'll always take quantity demanded या quantity supplied as the chapter will proceed. अगर demand chapter है तो quantity demanded, अगर supply chapter है तो quantity supplied. साथ में हम units mention करेंगे. यहाँ लेंगे price in rupees. We'll take price in rupees. Now I am not taking the help of the scale to plot the points. You make it with the help of scale so that the exact values can be plotted off. 2, 3, 4, 5. And just to give you an idea how we are going to make a demand curve. Now using above schedule, we'll plot the points in the diagram. At price 1, the demand is 5 units. Price 1, demand is 5 units. At price 2, 4 units. At price 3, 3 units.
at price for 2 units. That means as the price is increasing, the demand is decreasing. At price 5, it is 1 unit. Let me take the help of the scale. Now, these are the points that we get after plotting this. हम इन points को जब अब diagrammatically join कर देंगे scale के साथ, will get so formed as demand curve. ये हमारा DD demand curve बन गया है. This is demand curve. Individual demand curve. It is called as individual demand curve. So basically, it is a graphical presentation of individual demand schedule, what is called as individual demand curve. I suppose schedule सामने रखा है, curve सामने बनाया है. It must be very clear कि schedules को curve, individual demand curve में कैसे convert किया जाता है, या curve की definition कैसे निकाली. Individual demand curve, that means ये DD जो demand curve बना है, that is nothing more than a graphical presentation of individual demand schedule. Above mentioned individual demand schedule की graphical presentation को हम individual demand curve कहते हैं. एक चीज नोट करेंगे कि प्राइस डिक्रीज कर रहा है तभी डिमांड इंक्रीज कर रही है. प्राइस के डिक्रीज करने से ए ही डिमांड इंक्रीज कर रही है. अगर प्राइस हम इंक्रीज करेंगे तो डिमांड डिक्रीज करेगी, और प्राइस डिक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज कर रही है. मतलब चीजें इनवर्स जा रही हैं. इसीलिए डिमांड कर्व नीचे को आ रहा है. प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करती है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज करती है. डिक्रीज के साथ इंक्रीज और इंक्रीज के साथ डिक्रीज करती है. नाउ लेट्स प्रोसीड विद मार्केट डिमांड. Market demand schedule. Again, suppose there are 2 consumers in the market. Two consumers in the market, consumer A and consumer B. तो हम जो market demand है, हम जितने मर्जी consumer assume कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए I am assuming that there are only 2 consumers in the market, that is consumer A and consumer B. Now, same way schedule price, quantity demanded in units by consumer A, जैसे हमने पहले बनाया था, quantity demanded in units by consumer B, and then it is market demand, which is A plus B. I suppose it must be visible, A plus B. Now प्राइस कुछ भी ले लो, पहले हमने 1 2 3 4 लिया था, सेम ले रही हूँ. आप प्राइस इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी कर सकते हैं. बस ये याद रखना, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो डिमांड डिक्रीज करनी है, और प्राइस डिक्रीज कर रहे हो डिमांड इंक्रीज करनी है. इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आगे बताती हूँ. वैसे तो पता है कि कंज्यूमर की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर कोई चीज़ महंगी होती जाती है तो वो चीज़ कम खरीदता है, और जो चीज़ सस्ती होती जाती है वो ज़्यादा खरीदता है. बट इसे पर्टिकुलरली हम कहते क्या है, विल डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड, पहले वाला सेम उठा रही हूँ, 5 4 3 2 1. इधर मैंने ले लिया 6 5 4 3 2. मैंने डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर ए, डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर बी. मैंने बोला मार्केट डिमांड इज डिमांड ऑफ ए प्लस बी. सो ए प्लस बी 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 1 3. ये बन गया हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल. It is a table showing the demand of all the consumer. Here it has been taken 2 consumer that they are able and willing to buy at different possible prices during a given period of time. This is called as market demand schedule. Using this schedule, आप market demand की ये जो values हैं इसके साथ इस price को plot करके आप market demand curve बनाएंगे, और फिर हम market demand curve की definition क्या लिखेंगे? It is graphical presentation of market demand schedule. It is graphical presentation of market demand schedule. It is a graphical presentation of market demand schedule is called as market demand curve. It is called as market demand curve. So try इस शेड्यूल को यूज करके अपना मार्केट डिमांड कर्व खुद बना के देखना. डू इट इन द नोटबुक. मार्केट डिमांड कर्व, प्राइस और मार्केट डिमांड को प्लॉट कर देना. अदर वे राउंड इज प्राइस पे पहले डिमांड ऑफ ए प्लॉट करो, फिर प्राइस पे ही डिमांड ऑफ बी प्लॉट करो, फिर प्राइस पे टोटल प्लॉट करो. तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केट डिमांड इज डैश ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, तो आंसर आता है मार्केट डिमांड इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड.
जब हम इंडिविजुअल डिमांड्स को हॉरिजॉन्टली समेट करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड. हाउ 11 market demand comes to 11? It is sum total of 5 plus 6. So that means जब हमने individual demand into demand of A and demand of B को horizontally summate किया, that is 5 plus 6, it gives the answer as 11. So basically market demand schedule or market demand is the horizontal summation of individual demands. अगर consumer 3 होते तो हम market demand को A plus B plus C ले लेते. It can be any number of consumer. आप कुछ भी assume करके tabular presentation दे सकते हैं. Now इसी से हम curve present करेंगे. That is your work. I have already told you how to plot individual demand schedule as a curve. आप market demand वाला खुद try करेंगे. बच्चे इसके बाद next most important topic is law of demand. Let's proceed with the next most important topic of this chapter, law of demand. Whenever we state any law, law is always based on certain assumptions. कोई भी law assumptions के बिना possible ही नहीं है. तो let us discuss what is law of demand. जब भी law लिखा जाता है, it states के साथ शुरू होता है. It states that there is inverse relationship between price of a commodity and its demand. इसको समझाने से पहले इनवर्स रिलेशन होता क्या है, डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, उसको बताऊंगी. बच्चे जब जो दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती हैं, उस रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है. उस रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है. जब दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, दैट मीन्स एक के डिक्रीज के साथ दूसरा इंक्रीज और एक के इंक्रीज के साथ दूसरा डिक्रीज, इस रिलेशन को इनवर्स रिलेशन कहा जाता है. INVER, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप. दोबारा लिखती हूँ, INVERSC, इनवर्स रिलेशन. लेट अस अंडरस्टैंड, अगर दोनों फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दैट मीन्स एक के इंक्रीज करने से दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज करता है और एक के डिक्रीज करने से दूसरा फैक्टर भी डिक्रीज करता है, इसे डायरेक्ट रिलेशन. दैट मीन्स बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन. अगर एक के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करता है और एक के डिक्रीज करने से पहले वाला वेरिएबल इंक्रीज करता है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज इनवर्स. दैट मीन्स सिंपली व्हेन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन एंड व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन. अब मैंने लॉ ऑफ डिमांड पे आती हूँ. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या कहता है, दैट देयर इज कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स डिमांड. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड इट्स डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स. दैट मीन्स विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस एंड विद डिक्रीज इन प्राइस डिमांड इंक्रीजेस. अब हमने ऊपर वाले शेड्यूल में मैंने बोला था कि अगर प्राइस बढ़ा रहे हो तो डिमांड कम करोगे. मैंने बोला था जनरल टेंडेंसी होती है, उसके लिए राइट वर्ड अब से सब्स्टिट्यूट करेंगे एज पर लॉ ऑफ डिमांड. So it states that there is inverse relationship between price of a commodity and its demand. That is, with increase in price, demand decreases, and with decrease in prices, demand increases. मैंने डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन आपको बता दिया है कि डायरेक्ट और इनवर्स कैसे हैं, और लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स मीन्स नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ता है और दूसरा कम का होता है, इसे इस रिलेशन को हम नेगेटिव रिलेशन भी कहते हैं. इससे पहले मैंने एक और लाइन बोली थी कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है उसके पीछे सर्टेन अजम्पशंस होती हैं. लेट अस डिस्कस द अजम्पशंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड. अजम्पशंस मीन्स इस लॉ को ऑपरेट करने के लिए ये कंडीशंस ऐसी होंगी तो ये लॉ ऑपरेट करेगा. अजम्पशंस, नो चेंज इन लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है. जो कब तक, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. दैट मीन्स प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन रहेगा जब तक ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे. नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आगे बताऊंगी कि रिलेटेड गुड्स कितने तरह की होती हैं.
no change in income of the consumer, no change in taste and preferences, no change in future expectations by the consumer. Now लॉ के साथ assumption एक या दो मेंशन करनी कंपल्सरी है. अगर आप लॉ विदाउट assumption स्टेट कर देते हैं, देयर विल बी ऑफ नो वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन एज सच, बिकॉज लॉ कभी भी assumption के बिना ऑपरेट ही नहीं करता है. तो आपको सारी assumptions ना मेंशन करके दो assumptions के साथ भी आप लॉ की पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं. दैट मीन्स अगर दोबारा उसको सारा उठा के लिखें तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वन मोर थिंग, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, जो ये हमने लिखा है assumptions में ले लिए हैं, जो चीजें कांस्टेंट है वो हमने assumptions में ले ली हैं. तो other factors remaining constant के लिए we use the another word that is called ceteris paribus. I repeat, ceteris paribus. Ceteris paribus means other things remaining constant. हम other things remaining constant के लिए एक word use करते हैं, that is called as ceteris paribus. So now this is law of demand. लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कोई भी इमेजिनरी शेड्यूल प्राइस और डिमांड का लेके जैसे इंडिविजुअल डिमांड में बनाया था, सेम वे में हम इंडिविजुअल डिमांड का वाला शेड्यूल यूज करके लॉ ऑफ डिमांड को दिखा सकते हैं. डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाएंगे बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन. यहाँ क्या लिया था हमने, प्राइस इन रुपीज, यहाँ लिया था क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स. ये बना हमारा डिमांड कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये प्राइस पे ये डिमांड और ये प्राइस पे ये डिमांड, कि प्राइस डिक्रीज करता है, डिमांड इंक्रीज करती है. कौन सा स्लोप है, नेगेटिवली स्लोप्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव या डाउनवर्ड स्लोपिंग. कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड या नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि प्राइस के डिक्रीज करने से डिमांड इंक्रीज करती है एज पर लॉ ऑफ डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड के साथ यूनिट्स लिखना जरूरी है और प्राइस के साथ रुपीस लिखना जरूरी है. दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस. आप पॉइंट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल प्लॉट कर सकते हैं. आई हैव जस्ट मेड इट 300. दिस इज नेगेटिवली स्लोप. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर आफ्टर लॉ ऑफ डिमांड. अच्छा, इससे रिलेटेड वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इट ऑफ इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. व्हेन वी डिस्कस द स्लोप ऑफ एनीथिंग इन इकोनॉमिक्स, remember, slope of any of the curve in economics, slope is always perpendicular upon base. हम स्लोप जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं. यहाँ पे परपेंडिकुलर में है प्राइस और बेस में है क्वांटिटी डिमांडेड. तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, अच्छा, चेंज को हम इकोनॉमिक्स में डिनोट करते हैं डेल्टा के साथ. ये जो डेल्टा का सिंबल है दैट डिनोट्स अ चेंज. नाउ slope of demand curve, we don't have this topic in detail. Slope of demand curve is, I'll just tell you कि slope क्या है और कैसे निकालते हैं. Slope of demand curve is change in variable on perpendicular upon change in variable on base. Change in variable on perpendicular पे हमने क्या लिया है, price. तो that means change, delta means change in price upon change in variable on x axis, that is base. So that means change in quantity. डेल्टा मीन्स चेंज इन प्राइस परपेंडिकुलर में आ गया और चेंज इन क्वांटिटी बेस में आ गया. साथ में नेगेटिव साइन, क्योंकि रिलेशन कौन सा है, इनवर्स नेगेटिव. तो स्लोप ऑफ डिमांड इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. जनरल स्लोप ऑफ एनीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिमांड फंक्शन या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. Demand function. Demand function is a mathematical or technical relationship between demand and factor affecting demand. Dx denotes demand of x. Dx denote, D means demand of x. Demand of x is a function of. किस पे डिपेंड करती है डिमांड ऑफ x? अभी तक तो हमने एक ही फैक्टर डिस्कस किया है, प्राइस ऑफ x, जो हमने अभी डिस्कस किया लॉ ऑफ डिमांड में भी, कि डिमांड और अपने प्राइस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमने अजम्पशन में लिया था. Y स्टैंड्स फॉर इनकम इन इकोनॉमिक्स, तो हम इनकम की जगह सिंबल यूज करेंगे Y, इनकम. TP स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वर्ड मैंने पहले यूज किया था.
Demand function is a mathematical or technical, or it is a relationship between demand and factor affecting demand. Demand function is a relationship between demand and factors affecting demand. Factors affecting demand. It is a mathematical or technical relationship between demand and factors affecting demand. So, Px denotes price of a commodity. PR denotes price of related goods. Related goods are of two types: substitute, complementary. डिस्कस करेंगे डिटेल में सब्स्टिट्यूट क्या होती है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है. Y stands for income. अकॉर्डिंग टू इनकम हम गुड्स को दो पार्ट्स पे क्लासिफाई करते हैं: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स. TP stands for taste and preferences. वो भी दो तरह के होते हैं: फेवर, अगेंस्ट. ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्सपेक्टेशंस, rise in price in future, fall in price in future. Now let's come again to it. Demand function, it is a mathematical or technical relationship between demand and factor affecting demand. What are the factor affecting demand? These all are the factor affecting demand: its own price, price of related good, income, taste and preferences, and expectations. These are the factor affecting demand. But these are the factor affecting individual demand. मैंने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में शुरू से डिस्टिंक्शन किया है. ये फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और अगर मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछा जाए तो इंडिविजुअल वाले तो सारे ही आएंगे. अगेन डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ. अगर मार्केट डिमांड के फैक्टर्स पूछा जाए तो इंडिविजुअल वाले सारे प्लस दो और ऐड हो जाएंगे. पहले तो इंडिविजुअल वाले सारे लिख लो: प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन. ये तो सारे 5 के 5 इंडिविजुअल वाले आ गए. प्लस 2 और आ जाएंगे: P दैट स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन एंड DY. पॉपुलेशन एंड dy स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, y मैंने ऑलरेडी बताया था इनकम के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले 5 की जगह 7 फैक्टर्स हैं. कौन से? प्राइस ऑफ इट्स ओन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. एंड अगर डिमांड फंक्शन को डिफाइन करना है, उसमें इंडिविजुअल नहीं, मार्केट नहीं, इट इज अ रिलेशनशिप मैथमेटिकल और टेक्निकल बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. सो P, रिमेंबर, स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन. यहां पे अगर P यूज करेंगे, हमने दो फैक्टर कौन से ऐड किए हैं? पॉपुलेशन. एंड DY यूज किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए. हम प्रोसीडिंग चैप्टर में हम ये सारे फैक्टर्स डिमांड को कैसे इंपैक्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे, कि इंडिविजुअल फैक्टर्स या मार्केट फैक्टर ऑल टुगेदर कैसे इंपैक्ट करते हैं. हम उनको डिस्कस करेंगे एज विल प्रोसीड इन द चैप्टर. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स. कि रिलेटेड गुड्स में कौन सी दो बता रही हैं? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स को फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना है: नॉर्मल एंड इंफीरियर. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फेवर एंड अगेंस्ट. एक्सपेक्टेशन, इंक्रीज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर और डिक्रीज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर. पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी, आगे डिस्कस करेंगे. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसा रिच के पास ज़्यादा है या पुअर के पास, गैप कितना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, उसको डिस्कस करेंगे. सो ऑल टुगेदर आज के चैप्टर में हमने डिस्कस किया, हमने इंडिविजुअल डिमांड डिस्कस किया, हमने मार्केट डिमांड डिस्कस किया कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, हमने वो डिस्कस किया. शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल से कर्व कैसे डिराइव होता है वो बताया मैंने आपको. उसके बाद में हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया. लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन के बारे में पढ़ा. आफ्टर दैट हमने लास्ट में डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ा. मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं. इंडिविजुअल में 5, मार्केट में 7. मार्केट में 5 इंडिविजुअल वाले प्लस 2 और दैट ऑल टुगेदर 7 फैक्टर्स अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड. सो इंडिविजुअल वाले मार्केट को इफेक्ट करते हैं, लेकिन मार्केट वाले इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज मार्केट इज अ ब्रॉडर टर्म. मार्केट में इंडिविजुअल ऑलरेडी आता है.
So this is all about today's lecture. In next class we'll discuss one by one the factor affecting the demand. और उससे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में डिफरेंस डिस्कस करेंगे. थैंक यू.